टेक द ATC एज दिल्ली टावर. ठीक है, आई विल बी दिल्ली टावर and go ahead with readability check call. Okay, sir. Delhi Tower, Victor Tango, Alpha Bravo Charlie. How radio check? How do you read me? हाँ, अगेन कल हमने क्या बोला था, मी नहीं बोलना है, हाउ डू यू रीड मी नहीं बोलना है. ठीक है, एंड Okay, sir. द टर्म यू हैड यूज्ड रेडियो चेक, इट इज नॉट रेडियो चेक, इट इज रीडेबिलिटी चेक. ठीक है, ऑल्सो Okay, sir. हम कॉल में नहीं बोलते रीडेबिलिटी चेक, वी कैन सिंपली से हाउ डू यू रीड. हाउ डू यू रीड फ्रेज इज फॉर द रीडेबिलिटी चेक. ठीक है, so if you want to give a call, it shall be Delhi Tower, Victor Tango, Alpha Bravo Charlie. How do you read? ठीक है, Okay, and in okay, the sir. reply I will say Victor Tango, Alpha Bravo Charlie, Delhi Tower, reading you 5. The next station, Alpha Juliet Delta. Try to do readability check. Delhi ground, Alpha, Vector Tango Alpha Juliet Delta, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Victor Tango Alpha Juliet Delta, Delhi ground, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Read you 5. Okay, Salu, now your turn. You can keep any of the hypothetical call sign for you. Delhi Tower, Vector Tango, Sierra Hotel Alpha. Starting sir. Delhi Tower, Victor Tango, Sierra Hotel Alpha. How do you read? Victor Tango Sierra Hotel Alpha, Delhi Tower, read you 5. Victor Tango Alpha Bravo Charlie, Delhi Tower, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? किसको कॉल दिया सर आपने? Alpha Bravo Charlie, it was you only, right? Yes, sir. Yes, sir. Then what could be the reply? The Delhi Tower, read you 5. दिल्ली टावर read you 5. कौन मुझे रीड कर रहा है 5? Victor Tango Alpha Bravo Charlie. ठीक है, चलेगा. ठीक है, Okay. तो दिस इज ऑल्सो ओके. ऐसा नहीं है कि W1 W2 W3, आपके कॉल में तीनों W's अवेलेबल थे, दैट इज गुड. ठीक है, डन. एंड स्पेशली जब कोई ट्रांसमिशन में कोई डेटा प्रेजेंट करता है, लाइक आई हैव टोल्ड 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, इट मीन्स यू आर गोइंग टू गिव द रीड बैक ऑफ दिस डेटा. ठीक है, आपको रिपीट करना है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. आपके कॉल में ये भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द डेटा आई एम शेयरिंग टू यू विल कम ऑन द पोर्शन कि क्या क्या डेटा मैंडेटरी होती है रीड बैक्स के लिए. ठीक है, so I am initiating a call again to you. ठीक है, have be little cool, have little calm, and try to answer it again. Victor Tango Alpha Bravo Charlie, Delhi Tower, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Go ahead, don't worry. Try to cope up hesitation. मिटाना पड़ेगा. Yes, go ahead, no problem. Yes, Alpha Bravo Charlie. Don't worry. Try answering. Victor Tango Alpha Bravo Charlie, Delhi Tower, 1 2 3 4 Sir, 5. हाँ. I'm waiting for you only. my mic was closed. I was speaking. Delhi Tower. Oh, Victor Tango Alpha Bravo Charlie. Read you 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. चलेगा, ठीक है. Yes, sir.
Now, हाँ, anything? सर अभी मुझे मतलब जब आपने कॉल दिया है तो फिर मुझे कॉल साइन लास्ट में लेना ना मेरा मतलब। नहीं, हम आएंगे उस चीज पे, उस टॉपिक पे हम आएंगे, डोंट वरी। अभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिंपल बेसिक कॉल दो, जहाँ पे W1 W2 इनिशियली रहेगा, एंड ट्रांसमिशन फॉलो करो बाय रूल्स ऑफ 4W। आएगा वो वाला टॉपिक, आएगा जब कॉल में ना एक स्पीच का एक मोड होता है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग का खास करके। सपोज आई हैव फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद यू, ठीक है। सो कॉलिंग योर नेम विल बी सुटेबल फॉर इनिशियल 1 and 2 लाइन्स और पैराग्राफ्स। आफ्टर दैट वील यूज प्रोनाउन, ठीक है। हमने ग्रामर में पढ़ा था ना, समथिंग इज नाउन एंड समथिंग इज प्रोनाउन, राइट। योर नेम इज अ नाउन, राइट। So whenever we'll do initial interaction, what we can say, Mr. Valvan Ankush this side, ठीक है, and furthermore we can discuss like कि I am running a RT coaching classes. If you are interested, you can join further. Such things I can discuss with you. Later on, I cannot say Mr. Valvan repeatedly in my language, in my speech, right? That time I Yes, will sir. replace your name with the pronouns. What are the pronouns? Like whenever we write essay, Ram is a good boy, ठीक है। Ram belongs to Patna, Bihar. Then we switch to he is also good in education. He scores a good marks. We started using he, she, it, this, that. We started using pronouns. Similarly, whenever we are having initial introduction with any ATCs, we'll follow the rules of 4Ws thoroughly: W1, W2, W4, and 3. ठीक है। And then whenever we are continuous in communication, we'll give the priority to our W3, that is our purpose. हम अपने मुद्दे को पहले डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल कंप्लीट विद माई कॉल साइन, ठीक है। कंप्लीटिंग विद योर कॉल साइन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। कंप्लीटिंग विद द कॉल साइन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंट्रैक्शन। उसका भी हम लोग पढ़ेंगे वो पर, ठीक है। ओके ओके Just a सर। second. Now, okay, so our next topic is aeronautical phonetics. Okay, we'll have a look on phonetics, that how it works and what is it. Okay. Okay. So, something is known as aeronautical phonetics. Okay, what does it really mean? In aviation radio telephony protocol, okay, in radio telephony protocol, we cannot make a lengthy conversations, right? And we shall also not use any kind of statement or English word which may have resemblance with any other or that may create confusion. तो उसके लिए जो हमारे अल्फाबेट्स के, इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर कोड्स हैं, 26 लेटर कोड्स वी आर हैविंग, राइट। So whenever we are going to present any name, जहां पे इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज होता है, लेटर्स का यूज होता है, A, B, C, D, these letters का जहां भी यूज होगा, तो to avoid confusions and to make the communication effective and acceptable all over the world, हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स को एरोनॉटिकली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एरोनॉटिकल फोनेटिक्स में इसको एक्सट्रैक्ट किया है, एंड the same is being accepted by many of the department worldwide. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एविएशन में इसको यूज करते हैं, दूसरे जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ब्रॉड लेवल पे। आपने कभी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात किया होगा, तो whenever we try to explain our name
और whenever we try to explain the email, तो जब हम उनको लेटर कोड्स बोलते हैं देन उनका भी किसी न किसी तरह का फोनेटिक्स रहता है, but they are using the name of place. Suppose I need to explain the spelling of my name, ANKUSH, तो वो बोलते हैं A for इलाहाबाद, N for नैनीताल, K for कोलकाता, ठीक है। ऐसा करके U for उत्तराखंड, ऐसा करके आप कभी इंटरेक्ट किए होगे तो आपको पता होगा। अदरवाइज वो भी ऐसा करके लेटर कोड को क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, so that they can avoid any kind of confusion. ठीक है, the main goal is to avoid confusion. ठीक है, आपने कभी इंटरेक्ट किया होगा तो आपको भी पता होगा, but this is the protocol that they are following. Similarly, in aviation, we are following the protocol of phonetics, which are such. ठीक है, ए से लेके जेड तक के लेटर कोड को हमने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प, हमने नहीं एक्चुअली इकाओ ने हमको दिया है प्रोटोकॉल बना के, that for letter A we will say alpha, bravo, charlie, delta, echo, foxtrot, golf, hotel, india, juliet, kilo, mike, november, oscar, papa, quebec, romeo, sierra, tango, uniform, विक्टर, विस्की, एक्सरे, यंकी एंड जुलू। ठीक है, ए टू जेड। ये वाला लिस्ट आपको कहीं भी अवेलेबल मिलेगा, यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू विल गेट इट वेरी इजीली। ठीक है, आपको ये वाला लिस्ट मिल जाएगा। अभी क्या है, ए से लेकर जेड तक के लेटर कोड्स आपने अपने कॉलेज टाइम में या कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, दैट इज वेरी पॉपुलर, हम सबको सिखाया जाता है इन आवर एएमए इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग एंड ऑल। कुछ लेटर कोड्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ध्यान में रखना है। अदरवाइज बाकी चीजें आप एज इट इज बोलोगे, एक्सेप्टेबल, नेवर अ प्रॉब्लम। लाइक आप ए फॉर बोलो अल्फा, ओके, बी ब्रेवो, ओके, सी चार्ली, ठीक है, डी डेल्टा। जब आता है लेटर ई, देन समटाइम्स कुछ लोग इसको पढ़ते हैं इको, ठीक है, कुछ लोग इसको इको जैसा पढ़ते हैं, इको। दिस इज नॉट इको, you need to speak it like echo. ठीक है, echo. How to speak it rightly I had mentioned in the second column. You can say जहां पे अंडरलाइन किया है ना उसको थोड़ा सा जोर दे के आगे बोलना है। echo, foxtrot, hotel, India, like this. ठीक है, तो जो कोई लेटर इंपॉर्टेंट है थोड़े से प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसको हाईलाइट करता हूं। अदरवाइज आप ए से लेके जेड तक एज इट इज रट लो, हमेशा काम देगा। ई फॉर एको, नॉट इको, ठीक है। देन एल फॉर, दिस इज नॉट लिमा, दिस इज लीमा। सपोज आई वांट टू राइट अ नेम इन हिंदी डिक्शनरी, यू माइट हैव सीन माय नेम इज दीपक, राइट, आई एम राइटिंग इन हिंदी। If my name is Deepak, we used to write DEEPAK. If my name is Kavita, ठीक है, Kavita, then we should write KAVITA. Means ये वाला जो हर्ष ई है, we are replacing with I, and जो ये वाला है, we are replacing with double E, so that अगर एल का मतलब लीमा होता है प्रोनाउंसिएशन में, तो हम इसको लिमा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एज पर हिंदी प्रोनाउंसिएशन टेक्निक इसको लोग पढ़ेंगे लीमा, लेकिन इसको लिमा नहीं पढ़ना है। वी शुड स्पीक इट लाइक लीमा, ठीक है, लीमा, एको, लीमा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू, इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं एज क्यूबेक, क्यूबेक नहीं, कीबेक, ठीक है। व्हाट कुड बी द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन? कीबेक। एंड देन एज इट इज you can go ahead with Sierra, S for Sierra, Tango, uniform, Victor, whiskey, X-ray, Yankee, Zulu, ठीक है। So with this document you find
इफ यू वांट अ परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन टेक्निक, तो ये बीच वाला जो कॉलम है, ठीक है, इसमें आपको हेल्प के लिए दिया गया है हाउ टू रीड दिस लेटर कोड इन अ परफेक्ट मैनर एंड व्हाट कुड बी द कॉमन प्रोनाउंसिएशन, जो कॉमन है, जो कि एक आदमी देख के पढ़ सकता है, दैट इज रिटन इन थर्ड कॉलम। तो ए को कैसे पढ़ना है? अल्फा, बी को ब्रेवो, सी को चार्ली, डी डेल्टा, ई echo, F foxtrot, G golf, H hotel, I India, J Juliet, Juliet, ठीक है, जूलियट, किलो, लीमा, M माइक, N नवंबर, और पापा, Q क्यूबेक, R रोमियो, S सिएरा, ठीक है, सिएरा, सीरा, कुछ लोग इसको सीरा पढ़ते हैं, नो दिस, एस इज फॉर सिएरा, 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 टी टैंगो, यू यूनिफॉर्म, वी विक्टर, वी से विक्टर पढ़ना है, लेकिन आर पे कंटिन्यूअस टर जैसा नहीं करना है, ठीक है, विक्टर नहीं बोलना है कंटिन्यूअस, वी कैन स्मॉल प्रोनाउंसिएशन, स्मॉल पोर्शन ऑफ आर, विक्टर, otherwise the correct pronunciation is victor, ठीक है, विक्टर, तो आर भी नहीं बोलना होता है, बट अगर आप विक्टर भी बोलोगे चलेगा। एक्स इज फॉर एक्सरे, ठीक है, इस एक्सरे को एक्स पढ़ा जाता है, एक्स नहीं, कभी नहीं पढ़ना, एक्स, ठीक है, एक्सरे, डन, एंड देन याकी, याकी, एंड जेड फॉर जूलू, जुलू नहीं पढ़ना कभी भी, जुलू नहीं, जूलू, पूरा, समझ में आया? व्हाट इज इंपॉर्टेंस टू रीड आउट ऑफ ए टू जेड? Just anything clear? Yes, sir, clear. ठीक है, now we'll move to reading technique of numbers, ठीक है, if any other has joined, no, okay. We'll move to reading techniques of digits and numbers, how to read the digits and how to read the numbers. Now from digits 0 to 1, ठीक है, we can simply speak as we used to speak in our daily, हम लोग जैसा जैसा बोलते हैं 1 से लेके 9 तक वैसा ही बोलेंगे, it is never a problem. Only thing is to take care of that is letter 9, 9 को आप 9 बोलो, अदरवाइज बाकी 1 से लेके 8 तक एज इट इज जैसा डेली रूटीन। Sir, I am audible. Ability, yes, you are audible. सर वॉइस ब्रेक हो रही है। Sir, video 3. अच्छा, yes. सर मुझे स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं हाँ, रहा। यस, 9:30 बज गए क्या? ओके, it's 9:22, not a problem, it will go on, don't worry. Okay, how I'm audible now? Now is it clear? Yes, sir. यस सर। Okay. All stations, Delhi Tower. How do you read? रेडियो 1 सर। Radio 2.
ठीक है, all stations, Delhi Tower. How do you read? Radio 2, sir. रेडियो 3 सर। Radio. Okay. All stations, Delhi Tower. How do you read? Radio 5, sir. Radio 5, sir. और रेडियो 5 सर। ठीक. Okay. Now, the correct way to give reply, Radio 5, Victor Tango, Alpha, Juliet, Delta, like this. So that I can understand. Suppose मैंने स्क्रीन देखा ही नहीं, बट मैंने किससे सुना वो चीज, ये मुझे कैसे पता चलेगा? Whenever you are complete with your call sign. ठीक है? So whenever we are doing casual talks, means a little talks, a talks of a small portion, like I had asked, how do you read? So one way is there, you can say Delhi Tower, Victor Tango, Alpha, Juliet, Delta, reading you 5. Other way is you can simply say reading you 5, Victor Tango, Alpha, Juliet, Delta. Done? So whenever you are giving any answer, you are giving any response in the classroom, try to complete with your call sign. ठीक है, लास्ट में कॉल साइन बोलना है, so that at least I can understand कि ये response किधर से आया. Done. Now kindly confirm if my screen is visible. ठीक है. So I was saying 1 से लेके 9 तक, from 0 to 9, whatever we are speaking daily, we can simply speak. The main thing is to always aware of and always being taken care is a letter code 9. 9 को बोलना है नाइनर. ठीक है, 9 को नाइनर बोलना है, बाकी सब एज इट इज बोलो, कोई दिक्कत नहीं. बट देयर आर स्टिल सम प्रोटोकॉल आउट ऑफ दीज. ठीक है, हाउ? जस्ट लिसन. 0 को एज इट इज विल रीड इट एज 0, 1, 2. नाउ 3 जो है विल रीड इट लाइक 3. ठीक है, 3. Suppose if you have find any of the person which belongs to South India, ठीक है, if his name is Sumit, he will write Sumit, th in the last, and read it like Sumit. Geeta, ठीक है, they will write tha and they will read like Geeta. Similarly, whatever we say 3, we need to read it like 3, not 3. ठीक है, and then 4 as it is 4, 5. ठीक है, in English we are reading it as 5, V, but in RT communication it is as 5, FIFE. ठीक है, pardon me a second, I'll be back.
Okay, one student was waiting for the class. I don't know. He might have got some another link that he was unable to join from half an hour. So I had to pick that call. Meeting options. Just a second, I'll be back, huh? एक दो दिन का ही है, उसके बाद who can bypass the lobby? Everyone. Oh, what is problem for him? Okay, Amarjit, you are in now. You might have joining some link which I had shared 2 days ago. ठीक है, तो आपको वहां पे अप्रोप्रिएटली ज्वाइन नहीं हो पा रहा होगा, राइट? आपके पास जो लिंक था वहां पे क्या शो हो रहा है? 3 जनवरी, राइट? जी सर, बिल्कुल। हाँ, वो लिंक चेंज किया ना मैंने, अपडेटेड वाला, इसलिए डेली ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। यू हैड कनेक्टेड, ठीक है। Others, just be wait for 5 minutes. We'll continue to our topic. We'll just introduce to Amarjit and then we'll move ahead. Amarjit, kindly let me know about your current education background, especially, and your understanding about RT. Means how much you knows about RT till the time. आपको कितना पता है कि क्या होता है, कैसे होता है? Let me know, please. So now recently I completed my AME course, Okay. R147 in but sir, due to some gain of knowledge, there's interest to I joined to learn about RT. So according to telephonic like aviation communication, so using we are RT aviation communication, we are using RT. ठीक, got it. I'm running this class from 3 day. ठीक है, we'll share 2 videos including today's class, so that you have little familiarization, and we'll give you extra time to you to familiarize with the course and requirements, and I'll suggest the better way to go ahead with RT for you. ठीक है, whatever is your current educational strength, I'll suggest honestly on the basis of that. For now, I am describing a topic which is very basic in nature. You can continue with the class so that you can have understanding of my टीचिंग टेक्निक। ठीक है, एज ए डेमो क्लास आप अभी कंटिन्यू करो। एक बहुत बेसिक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू विल एंजॉय दैट पोर्शन। ठीक है, हम आपके लिए स्पेशल आधे घंटे का टाइम देंगे टू ब्रीफ द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल लेटर। ठीक है, फॉर नाउ बी ऑन द इन द क्लासरूम। ठीक है, done. So I was explaining about aeronautical phonetics, how to read A, B, C, D, E from A to Z, and then I was explaining the reading techniques of digits. Okay, to read 0 to 9, the only thing we need to take care of the letter code 9. 9 को 9 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नाइनर। And for rest of the letter codes 0 to 8 we can pronunciate as we are doing on daily basis. ठीक है, but if you want to be perfect as per the established protocol, then you can follow like this. 1 को 1 ही पढ़ना है, 2, 3 को पढ़ना है 3, 4, 5 को FIVE 5 पढ़ते हैं ना, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 5। ठीक है, 5 FIFE, 6, 7, 8, नाइनर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो रीडिंग टेक्निक में हमारे लिए क्या स्पेशल हुआ? 3 लेटर कोड, इफ वी सी वेरी माइन्यूटली, 3, 5 एंड नाइनर, रेस्ट ऑल आर द सेम।
Done? Now, the later protocol says we cannot read out anything as number. ठीक है, नंबर क्या होता है? The combination of digits. 1 is a digit, 2 is a digit. When it comes together, it becomes 12. But we cannot speak 12 here. Neither we can speak 39. We cannot speak 65. नंबर प्रोनाउंसिएट नहीं करना है, तो क्या बोलना है? We'll say 1 2. We will say 3 9er, 6 5, 7 0 70. No, we will speak 7 0. ठीक है, नंबर प्रोनाउंसिएशन रेस्ट्रिक्टेड है. To pronunciate numbers, we will pronunciate digits separately. ठीक है, we cannot speak it 98. We need to speak 9 or 8. ठीक है, 34 no, 3 4. मैं क्लियर ऑन दिस? आपको नंबर प्रोनाउंसिएट नहीं करना है. सो फार सो गुड, समझ में आया? यस, नो, एनीथिंग? Yes, sir. ठीक है. सो हमको नंबर प्रोनाउंसिएट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट. व्हाट टू से? डिजिट्स को सेपरेटली बोल देना है. नाउ हमने पढ़ा अल्फा से लेके जुलू तक, हाउ इट इज बीइंग प्रोनाउंशिएट. अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, गोल्फ, होटल, इंडिया, जूलियट, किलो, लीमा, माइक, नवंबर, ऑस्कर, पापा, कीबेक, रोमियो, सियरा, टैंगो, यूनिफॉर्म, विक्टर, विस्की, एक्सरे, यांकी एंड जुलो. राइट, तो हमने लेटर का प्रोनाउंसिएशन देखा, डिजिट का देखा. नाउ वी आर हैविंग सम मोर रीडिंग टेक्निक्स. ठीक है, अगर नंबर तक आया या डिजिट तक आया, वहां तो हमने मामला संभाल लिया. नाउ when it going to a larger figure means जब कॉम्बिनेशंस आएंगे. कैसे? 398, 462. तो हम लोग क्या करेंगे? We are allowed to speak 100 and 1000. ठीक है, in RT number system 100 and 1000 is available. ठीक है, so if something is written as 800, we can say it 800. ठीक है, we can say 9000 correction. ठीक है, we can say 9000, we can say 7000. but at the same time when it is written as 1200, we cannot say it 1200. We need to say 1200. Why? 1000 बोलने की परमिशन हमारे पास है, 1 बोलने का भी परमिशन है, तो 1200. सिंपली यू नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि नंबर प्रोनाउंशिएट करना नहीं है, नंबर नहीं बोल सकते. बाकी 100, 1000 एंड डिजिट्स का यूटिलाइजेशन जहां कहीं भी हो हम उसको यूज करेंगे. ठीक है, when something is written in decimal, सपोज लिखा हुआ है 2.5, 3.2. कुछ दिन पहले एक वो मूवी आई थी ना, रावण या क्या था वो, रोबोट वाला, रोबोट 2.0 ऐसा करके कोई मूवी थी ना, 2.0. तो नॉर्मल कम्युनिकेशन में हम लोग पॉइंट बोलते हैं, चलता है. बट इन आरटी वी शुड से इट डेसिमल. 2.5, 3.2. ठीक है, 14.28, 16.43 लाइक दिस. बट पॉइंट नहीं बोलना है. क्लियर सो फार? समझ में आया? यस सर. सर 142 को कैसे पढ़ेंगे? 14 go ahead. 2. हाँ, 142 को सर विल 142 को 142 ही पढ़ना है.
104 ऐसा नहीं। ओके नहीं, 142 बोलोगे तो फिर आपका निकलेगा ना। ठीक है, आई विल कम ऑन दैट रीडिंग टेक्निक आल्सो। ठीक है, आएंगे उस पे। ओके नाउ इट इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, इट इज ऑलवेज बेटर व्हेन यू, अच्छा अभी से शुरू कर लेते इधर पे ही। इट इज ऑलवेज बेटर व्हेन यू ट्रांसमिट ईच एंड एवरी डिजिट सेपरेटली। ऑलवेज गुड, हमेशा एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो दैट यू कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। 100 एंड 1000 का इस्तेमाल लोग वहां पे करते हैं जहां पे वी हैव मल्टीपल जीरो। So to avoid saying 000 numerous times, we use hundreds and thousands. Okay. Otherwise, when it is comes like this, 300 9 or 8. Okay, this doesn't looks suitable. So it is always good to transmit 3 9 or 8. हर एक डिजिट को अलग अलग ट्रांसमिट कर दो, ये हमेशा सेफर साइड है। ठीक है, और सुनने में भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा, दैट विल लुक्स प्लीजेंट। ठीक है, नाउ व्हेनेवर वी आर ट्रांसमिटिंग एनी डायरेक्शंस, ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेस्ड ऑन द एबव टेक्निक। एग्जांपल से सब समझ में आएगा इजीली। व्हेनेवर वी आर एक्सप्लेनिंग सपोज फ्लाइट लेवल, ठीक है, it is flight level 180. Now who is going to tell me if it is flight level 180, what is the current altitude in feet? कितना altitude होगा? 8,000 feet, sir. 18,000 sir. 18,000 feet. Very good. So whenever we are having flight level with anything, ठीक है, we simply multiply it by 100 and that is our altitude. ठीक है, so it is flight level 180 means we are on 18,000 feet. We can say 18,000 feet क्योंकि हम लोग 18 नहीं बोल सकते हैं, 18,000 feet. और we can say flight level 180, 180 नहीं, ठीक है, 180। अपना डायरेक्शन, एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन हम जो डिसाइड करते हैं, आइदर इट इज अ CNS पेज और इट इज अ कंपास लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ अस, DR कंपास। तो जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी हेडिंग होगा, इफ इट इज 180 डिग्री वी विल से हेडिंग 180। ठीक है, डोंट रीड इट एज उन, दिस इज नॉट उन। ठीक है, this has been written as WUN to understand the people all over the world, to make them understand. ठीक है, अगर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के लोग, अगर आप उसको बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है, तो वो बोलेगा ओने। ठीक है, दे विल रीड इट लाइक ओने। तो उनके लिए भी तो इकाओ जुगाड़ करेगा ताकि वो भी समझे। तो WUN को वो लोग पढ़ते हैं 1। ठीक है, अगर उनको बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है, तो वो 0 नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, WUN पढ़ना है 1। ठीक है, whenever we are reading winds direction and all, winds 200 degrees, 25 knots, 25 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 25। when it is winds direction 160 degree and speed is 18 knots, तो इनको 160 नहीं पढ़ सकते। winds 160 degrees 18 knots, gusting 30 knots. Whenever we are reading transponder codes, it is 2400, but in transponder codes and squawk code 100 and 1000 का भी यूज नहीं करेंगे। We will transmit each and every letter separately. Squawk 2400, 100 and 1000 का यूज हम लोग सिर्फ अल्टीमीटर के रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी transmitted as separate digits.
ठीक है, अल्टीमीटर के भी कोड में अगर सेपरेट सेपरेट डिजिट्स बोला जाए, इट इज ऑलवेज बेटर. Now we'll go some more. Just go on altitude explanation only. ठीक है, altitude कैसे कैसे पढ़ेंगे. Suppose we are having QNH. So QNH will be always written, transmitted as separate digit. QNH 1010. We are flying on 800 feet. So we can say 800 feet. ठीक है. If we are flying on 3,400 feet, we can say 3,400 feet. ठीक है, अब यहां पता चला जब हमारे पास कंटिन्यूअस जीरो आता है तो टू अवॉइड दिस कंटिन्यूअस जीरो हम लोग हंड्रेड्स या थाउजेंड्स का यूज कर लेते हैं. अदरवाइज इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू ट्रांसमिट सेपरेट. 12,000 फीट, 12 नहीं बोल सकते, क्या बोलना होगा? 12,000. 18,900 फीट, 18 नहीं बोल सकते, क्या बोलना है? 18,000. यहां तक हो गया. देन 900. So this is the technique of altimeter representation. We can use 100 and 1000 when there are multiple zeros at last. Otherwise, it is always safe if you speak altitude 12000 या फिर flight level 120. When we are going to read distances or anything in meters or kilometers, suppose it is visibility. So if visibility is 1000 meters, we can say visibility 1000. It is understood that it will be represented in meters. आप इसको भी नोट कर सकते हो, पार्ट 2 में पूछ सकता है विजिबिलिटी को रिप्रेजेंटेशन किस चीज से करते हैं, इन मीटर्स. RVR रनवे विजुअल रेंज 600 meters. Runway visual range 1,700 meters. Now we'll come on decimal things, how to transmit the decimal. So when we are transmitting the frequencies in the examination hall, decimal का use होता है वहां पे. If it is written as 118.000, we can say 118.000. But as per our mathematical tools, if it is written as 118.200, लास्ट के 2 डिजिट का कोई वैल्यू नहीं रखता है. ठीक है, आफ्टर डेसिमल लास्ट के जीरोस का कोई वैल्यू नहीं रहता है. इट कैन बी रिटन एज 118.2. Similarly, we can speak this communication frequency as 118.0. लास्ट के 2 डिजिट हम स्किप कर सकते हैं. ठीक है, एज पर मैथमेटिक्स रूल. If the frequency is 119.005, we need to speak it as 119.005. If it is as 118.100, we can transmit it as 118.1. लास्ट के 2 जीरो का कोई वैल्यू नहीं है. If it is as 119.010, we need to speak separately each and everything. 119.010. Whenever we are transmitting the time, then it is always recommended to transmit each and every letter separately. If the current time is 2148, रात में 9:48 होने, right? So it is always safer to transmit as the time is 2148. ठीक है? The time is 0920. But in transmission technique of time, it is recommended by the ICAO protocol कि आप hours के transmission को skip कर सकते हो. Only minutes can be transmitted.
तो अगर ऐसा लिखा हुआ है 0920, you can simply say the time is 20 minutes. It is also acceptable. But why to take risk? Simply go ahead with this. The time is 0920. The time is 1643. Or we can say the time is 43 minutes. Generally, we avoid mentioning the seconds. But if the second is absolute half, आधा मिनट हो रहा है, then we need to include in the transmission of time. The time is 1443 and half, and उसको बोलना भी है half, 30 seconds करके नहीं बोलना है, ठीक है? The time is 1443 and half. Am I clear so far? Yes, sir. Generally Yes, sir. 24 ओके जनरली 24 आवर्स के क्लॉक पे जो भी टाइम होता है, सपोज इट इज आफ्टरनून 3 o'clock, so it will be 15 and 00. In a military point of view, we are also saying it, the time is 1500 hours, ठीक है? 1500 पूरा का पूरा बोल देते हैं, 1500, 800 hours, 2100 hours. It means 2100 means 21 टाइम एंड 00 इज मिनट्स, ठीक है? मिलिट्री एस्पेक्ट से हम लोग आवर्स के टर्म में बोलते हैं अलोंग विद 100. इफ आई से एवरीवन विल फॉल इन, ठीक है? फॉल इन बोलते हैं जब कोई मिलिट्री पर्सनल्स लाइन में लगते हैं ना, तो उनको बोला जाता है फॉल इन. तो जनरली बोला जाता है एवरीवन फॉल इन एट 900 आवर्स शार्प, या फिर एवरीवन फॉल इन एट 730 आवर्स, ठीक है? 730 आवर्स मीन्स 7:30. 900 hours means morning 9 बजे. So if I say assemble at 2100 hours, 2100 hours मतलब रात के 9 बजे, like this. तो इसको भी समझना है, अगर कभी ऐसा आ जाए तो you can have understanding कि इसका मतलब क्या होता है. Now एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? We'll cover it later. एक क्वेश्चन आता है कि state the time without giving the numbers, और उसका आंसर होता है the time on the hours. अब इसका आंसर ये क्यों है, ये बात या तो WPC जानता है या भगवान जानते होंगे. ना मुझे आज तक पता चला है, ना मैंने किसी से पूछा हो उसने मुझे बताया हो. मुझे लिटरली इसका पता नहीं रीजन, बट इसका आंसर यही है. क्वेश्चन में रहेगा गिव द टाइम चेक विदाउट स्टेटिंग द नंबर्स, और उसका आंसर है द टाइम ऑन द आवर्स. क्यों है मुझे नहीं पता, ठीक है? तो अगर आपके एग्जाम में आएगा आपको यही आंसर करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन ऐसा और रहता ही रहता है DGCA या WPC के एग्जामिनेशन में, तो इसको याद रखना है. बस प्रैक्टिस के साथ ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं है. Whenever we are transmitting the runway numbers, so runway 34 nahi, we need to say runway 34, runway 27 no, runway 27, ठीक है? So the master rule, what is the master rule? Whenever it comes anything in front of you, ठीक है, it is always safe to transmit each and every letters or digits separately. 1 2 0 0 होटल गोल्फ एको, ठीक है? SOLD सोल्ड नहीं बोलना है, सियरा ऑस्कर लीमा डेल्टा, लाइक दिस, ठीक है? सो दिस इज द मास्टर रूल. सबको अलग अलग डिस्क्राइब कर दो, यू विल बी सेफ टू प्रोनाउंशिएट ईच एंड एवरीथिंग. So far so good. Was it easy to understand, everyone? Yes, sir. Entire topic was easy to understand. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. So we learned to pronunciate aeronautical phonetics, reading techniques, and that's it.
aeronautical phonetics and reading techniques of number, time, altitude, visibility. Now, I'm going to explain one very important topic and that is very simple. ठीक है, उसको explain करते हैं. Right? I was explaining the last term was runway numbers. As I said कि कल से हमारा क्लास as usual start होगा with the plan and all. So आज के लिए एक और टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, then I'll finish the session. ज़्यादा कुछ पढ़ा के कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है टू अपकमिंग स्टूडेंट्स. कल तक हमारा टारगेट डेट है कि कोई भी न्यू कमर्स आके ज्वाइन कर सकता है. तो कल तक हम लोग चलेंगे एज पर आवर ग्रेजुअल मूवमेंट, धीरे धीरे. उसके बाद हम लोग कल से सिलेबस वाइज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा स्टडी स्टार्ट करेंगे. राइट. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग, कन्फर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. इज इट विजिबल? स्क्रीन शेयर हो रहा है? ठीक. Yes, sir. So if I write runway 34 or if I had written runway 27, क्या होता है इसका एक्चुअल में मतलब? Something is known as runway designator. ठीक है, जो रनवे होता है ना, उसका कोई ना कोई नंबर दिया हुआ रहता है. वो नंबर कैसे एलोकेट होता है? ठीक है, रनवे क्या रहता है? एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रिप रहेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा. रनवे कभी भी कर्व या टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है. एग्जैक्ट 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन रहेगा रनवे ऑलवेज. थोड़ा सा भी टिल्ट कुछ नहीं, नो कर्व्स. ठीक है. सो इफ इट इज रिटन एज रनवे 34, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? रनवे 34 का मतलब है, ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इट विल मेक 340. रनवे 34 का मतलब है ऑन एन, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. रनवे 34 का मतलब है ऑन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट इज 0 डिग्री और 360 डिग्री नॉर्थ, देन साउथ एग्जैक्ट 180 डिग्री, ईस्ट 900 डिग्री, 270 डिग्री वेस्ट. रनवे 34 का मतलब है आपका रनवे अर्थ पे एग्जैक्ट 340 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, दिस इज रनवे 34. ठीक है, यानी ये रनवे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ 340 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहा है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं रनवे 34. ठीक है. इफ इट इज रनवे 27 means this runway is making 270 डिग्री along with अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब आपका रनवे एग्जैक्ट इक्वेटर पे लाई कर रहा है, रनवे 27. समझ में आया सबको? सो इफ आई से रनवे 12 means this runway is making 120 डिग्री along with अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नॉर्थ के साथ मिलके वो 120 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी आपका रनवे ऐसा है. क्लियर सो फार? समझ में आया सबको? Yes, हाँ, sir. help me with feedback. Repeat it once. Sir, one doubt. Sure. Runway 27 and runway 9. अगर आएगा रहा आएगा, तो डोंट वरी, आएगा आऊंगा उस टॉपिक पे. दैट इज नोन एज रनवे रेसिप्रोकल. ठीक है, आऊंगा उस पे. यस. चलो, आपके क्वेश्चन को इंटरप्ट नहीं करते हैं, सो दैट आपका क्यूरियोसिटी नहीं दबनी चाहिए. हाँ, क्या बोल रहे थे? रनवे 27 एंड 9 अगर रहा तो? yes sir, इन दोनों में सेम 270 एंड 90 डिग्री का सेम पाथ बनेगा तो फिर आते कैसे? हैं. ठीक ठीक है, ये डाउट आपका कवर होगा नेक्स्ट टॉपिक में, डोंट वरी. ये वाला है, ये वाला आपका पढ़ने का सिलेबस का पार्ट है. रेसिप्रोकल वो टॉपिक कहलाता है, विल कवर इमीडिएटली आफ्टर दिस. ठीक है. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग, अगर लिखा हुआ है रनवे 34, रनवे का कोई ना कोई नंबर रहता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना NH7, NH8, NH48, ऐसा करके बोलते हैं ना. अब
आरटीओ का मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि ये NH7 इसलिए देते हैं कि ये 7 डिग्री बनाता है, ये आरटीओ का है या नहीं है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इफ इट इज रिटन एज रनवे 3-4, इसका मतलब है रनवे जिस भी एयरफील्ड पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, दिस रनवे इज मेकिंग 340 डिग्री along with अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रनवे 340 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। रनवे 27 मींस ये बना रहा है 270 डिग्री along with अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। रनवे 12 is making 120 degree along with earth magnetic field. Clear for now? समझ में आया? यस सर। सर बट एक डाउट है, लाइक अगर ये 90 डिग्री से कम रहा या फिर 180 डिग्री से कम रहा तो फिर उसे हम कैसे बोलेंगे? आता हूँ टॉपिक, डोंट वरी। 90 डिग्री से कम रहा, यू मीन टू से कि इट इज रनवे 70 डिग्री, राइट? रनवे 07, रनवे 07, रनवे 09, 08, 2 डिजिट्स में नहीं रहा तो आप पूछ रहे थे ना, सेम। रनवे 02, 01, 0। जैसे कि अगर 270 डिग्री है तो उसे हम रनवे 27 लिख रहे हैं, बट अगर वो सिर्फ अगर 27 डिग्री रहेगा तो फिर उसे हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, रनवे 27 डिग्री यू मीन टू से, राइट? हाँ, ऐसा तो रहता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा बनता नहीं है। ये बनेगा 10-20 इसके इंटरवल पे बनेगा। दैट टाइम वी कैन राइट रनवे 01, रनवे 02, रनवे 03, ठीक है। एग्जैक्ट 27 डिग्री पे रनवे नहीं आएगा करके। ओके सर, थैंक यू। Now come to the doubt of Alpha Juliet Delta. He was saying कि अगर 2709er एक ही साथ टकरा गया तो क्या करेंगे? ओके, सही, गुड डाउट। Actually, this is a part of syllabus. Something is known as reciprocal of runway. Reciprocal का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब उल्टा क्या मतलब होता है? ठीक है, जब एक कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एक साइड से वो, ठीक है, एक साइड से वो एक एंगल बनाएगा along with अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बट सिमिलरली ऑन अदर साइड दे विल इंटरसेक्ट एट अनदर एंगल। हाउ? जस्ट हैव अ लुक, बनाता हूं अभी डायग्राम। उससे पहले आप लोग किधर गया रनवे का पोर्शन? जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस रनवे। एक एंड पे लिखा हुआ है रनवे 27, दूसरे एंड पे लिखा हुआ है 09er। नाउ जस्ट हैव अ लुक, एक हमारा अर्थ है, अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन पास होता है, सेम लाइन इज मेकिंग अराउंड, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, राइट? दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ वन। सेम लाइन 60 डिग्री बना रहा है ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट and the same is making 240 degree in third quadrant, right? So the topic is reciprocal of runway. Reciprocal means उल्टा, अगर एक एंड पे वो 270 डिग्री बना रहा है तो अदर एंड पे वो क्या बनाएगा, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, straight line is 180 degree opposite to each other, exactly 180 degree opposite to each other. अगर इस साइड पे 0 डिग्री है देन इट विल बिकम 180 डिग्री इन अ सर्कल, ठीक है। सर्कल में नॉर्थ इज एट 0 डिग्री, देन साउथ इज एट 180 डिग्री, ठीक है। ईस्ट 90 डिग्री तो वेस्ट है 270 डिग्री। 290 में 180 ऐड करो, 270 पहुंचा। सिमिलरली ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, every straight line is 180 degree reciprocal to each other. Then in case of runway, if it is runway 27 means if it is making 270 degree in third quadrant, on other end it will become runway
09er. ठीक है, if it is making 1-2, ठीक है, runway 1-2, that is 120 degree, in other quadrant it will make 300 degree, it will become runway 30. ठीक है, so the topic is how to find the reciprocal of runway. तो basis of the reciprocal क्या है? Two line will be 180 degree apart from each other. ठीक है, so how to find the reciprocal? Suppose question has been given, रनवे 27 के अपोजिट क्या होगा एंड रनवे 12 के अपोजिट क्या होगा. सो आवर फर्स्ट थिंग विल बी कन्वर्ट द सेम इनटू एंगुलर फॉर्मेट. ठीक है, 270 डिग्री. ठीक है, एंड दिस विल बिकम 120 डिग्री. नाउ बेसिस ऑफ द रेसिप्रोकल क्या है? टू लाइंस आर 180 डिग्री अपोजिट टू ईच अदर. So if the figure is greater than 180, subtract 180 from it, and if the figure is lesser than 180, add 180 into it. तो हमारे पास जो भी फिगर एज एन एक्सट्रैक्ट आएगा, डिवाइड इट बाय 10, then it will become reciprocal. Runway 09er is the reciprocal of runway 27 and runway 30 is the reciprocal of runway 12. क्या ध्यान में रखना है? अगर एंगल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो फिगर है अगर 180 से कम है तो 180 इसमें माइनस कर दो. सॉरी, अगर 180 से ज्यादा है तो 180 इसमें माइनस कर दो, और अगर 180 से कम है तो 180 इसमें ऐड कर दो. तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बिकम रेसिप्रोकल टू दिस रनवे. समझ में आया सबको? अभी एक प्रैक्टिस करेंगे तो ये सॉल्व भी हो जाएगा. अल्फा जूलियट डेल्टा, इज इट क्लियर टू यू नाउ? क्लियर सर. हाँ, तभी कोई भी रनवे हमेशा दो एंगल कंटेन करता है. एक साइड से वो अगर रनवे 12 है तो दूसरे साइड से वो हो जाता है रनवे 30. व्हाई? दैट इज एन स्ट्रेट लाइन. सर्कल में दो जगह इंटरेक्शन होते हैं उनके. नाउ आई एम गिविंग वन एक्सरसाइज टू ऑल. ठीक है, 2 मिनट की एक्सरसाइज है. इट इज द टाइम इज 2206. ठीक है, सो आई एम गिविंग टू ऑल. वी आर हैविंग 4 कैंडिडेट्स, राइट? तो 4 क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर अल्फा जूलियट डेल्टा. ठीक है, अल्फा जूलियट डेल्टा रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 14. अल्फा ब्रेवो चार्ली रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 32. सियरा होटल अल्फा रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 08. अमरजीत फॉर यू रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 27. सॉरी, मेक इट 25. इतना क्यों इजी देना? हाँ, चलो सब लोग अपना अपना रेसिप्रोकल निकाल के आंसर करेंगे, एंड आफ्टर गिविंग आंसर क्लोज विद द कॉल साइन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड किसका कॉल था ये. रनवे 260 विक्टर टैंगो शेरा होटल अल्फा. रनवे 260 नहीं होगा, रनवे 260 इज द एंगल. गुड Yes, वन, sir. वेरी गुड. नेक्स्ट कैंडिडेट. रनवे 220 वेक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा. अयो, ठीक है. अल्फा ब्रेवो चार्ली रनवे 220 नहीं होगा, रनवे 22 इफ यू से. ठीक है, अल्फा ब्रेवो चार्ली वेटिंग फॉर योर आंसर. Is he there? Amarjeet, are you there in class? Other two?
Balban and Amarjeet waiting for your answers. अच्छा चलो कोई बात नहीं. Now Alpha Juliet Delta, this is not correct. क्या किया आपने? 1/4 को आपने कन्वर्ट किया एंगल में, आया 140. ठीक है, फिर आपने क्या किया इसके बाद? 180 ऐड किया सर. 180 ऐड किया, कितना आएगा? 32. तो रनवे 32. यस ठीक है, सर. हाँ सो इट विल बी रनवे 32. तो रनवे 32 का अगर रेसिप्रोकल है रनवे, नाउ रेसिप्रोकल को डिनोट कैसे करेंगे? लाइक दिस, रनवे 32 इज द रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 14. तो 32 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 14. 14 का रेसिप्रोकल 32. नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 25? एनीवन कैन टेल? Very simple. Done? Runway 07. 7. So this was the topics what we had covered. Okay, we had came to know the reading techniques of number, digits and all, and then we learn about runway designation, as well as we had learned to find out the reciprocal of runway. So I think that's enough for today. From tomorrow onwards, I'll suggest everyone to take admission and continue further so that I can share study material to you. Okay, and you will be continue to our study plan. Okay, study materials will only be shared to the admitted students only. Whatever the way of admission it is there, you need to simply go ahead with that. Now, so you all can leave this meeting. Alpha Juliet Delta, Shalu, Valban. That's all for you guys today. Okay, I need to take care of Amarjeet for introduction point of view, so that I can suggest something for him. Okay, the rest of the candidates can leave this meeting. That's all for today. We'll see you tomorrow 9 o'clock. Okay, sir. Thank you. Good evening sir. Thank you sir. Good night. Good night. Amarjeet, if you are available, then let me have your introduction, please. Hello, good evening, sir. Hi, good evening. Let me just stop the recording so that we'll move further to you.